चंदौली का सौभाग्य है कि माउंट ईटन स्कूल के संस्थापक एवं प्रबंध निर्देशक श्री दुर्गेश पांडे जी आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान हैं। आप एक शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधक होने के साथ ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। आप सिविल बार एसोसिएशन चंदौली के महामंत्री का भी पद सुशोभित कर चुके हैं। आपके जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि संस्था की छात्राएं श्रुति जायसवाल और शुभ्रा कुमारी आगे मंच संचालन का कार्य करें। श्रुति और शुभ्रा। मैं श्रुति जायसवाल और मैं शुभ्रा कुमारी आज के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वह मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें। आदरणीय अतिथि महोदय, अब मैं निवेदन करूंगी कि आप दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। देवी महेश्वरी भारती माता, तव गुण महिमा भुवने ख्याता। वीणा पाणि सरस्वती वरदे, आश्रित रक्षिणी अहि जन सुख दे। ज्ञान विराग विवेक विज्ञान, निगमागम मयि शांति निधाने। दूरी कुरु मयि दुष्कृत भारम, कुरु कृपया भव सागर पारम। देवी महेश्वरी भारती माता, तव गुण महिमा भुवने ख्याता। स्वागतम ही स्वागतम है आपका, किसको मिलती सरपरस्ती आपकी। है हिमालय सी ये हस्ती आपकी, हम सभी पर प्यार है ये आपका। स्वागतम ही स्वागतम है आपका। दीपमाला स्वागतम में जल उठी, इत्रमल करके हवाएं चल उठी। हम सभी पर प्यार है ये आपका। स्वागतम ही स्वागतम है आपका। है अतुल सम्मान श्रीमन आपका। स्वागतम ही स्वागतम है आपका। धन्यवाद। मांगते हैं भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशियाँ पूरे ईमान से। सारी हसरत पूरी हो आपकी, सारी हसरत पूरी हो आपकी, और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। Thank you, Sutra, for calling me. A very
Nikita Sharma. Today I would like to share my thoughts about importance of education. Education is very important to all of us. Our home is our first school and our parents are our first teacher, where we learn how to behave to others. Education is the only key to success in personal and professional life. It is important to be well educated or one's aim to become a doctor, a teacher, an engineer, and a soldier, or hold such any respectful position. I would like to mention the word of the great political leader Nelson Mandela, that is, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. I would like student Tanya Robi to come and brief us about object. All my respected teachers and everyone present here. I am Tanya Bobby, a student of this new Mediacom Academy. First of all, I would like to thank my teachers for providing me such a wonderful opportunity to speak some words on importance of education. As we know that we are here for the prize distribution of a GK competition which was held on 28th of August 2021. General knowledge is a knowledge of every aspect of a human life which may or may not be the part of academic studies. If you don't know a little about going around and in a journal things that happen, you seem to be very ignorant. That's all about. Thanks for your kind attention. कंपटीशन जो हुआ था सीनियर और जूनियर दो लेवल पे हुआ था, तो जूनियर में है थर्ड पोजीशन पे है कोमल जायसवाल। जोरदार तालियां कोमल जायसवाल के लिए। सेकंड पोजीशन है अनुज कुमार। जोरदार तालियां अनुज कुमार। फर्स्ट पोजीशन अंकित यादव। Okay, I would call Anup Kumar. Student Anup Kumar stands third in this senior group of GK competition. He has successfully completed financial accounting with Tally course from the Mediacom Academy. All the best for your future endeavors. Now, I would like to call the person who has stood second. His name is Roshan Raj Singh. He has been second and he attends personality development and spoken English class here in the Mediacom Academy. He has stood second in the GK competition for which he is being awarded by the Honorable Guest. Now, I would like to call the person who really has such a record by achieving the first place. His name is Farhan Ahmed Siddiqui. And he is a student of financial accounting with Delhi. He is also pursuing course on computer concepts, that is CCC, from the Mediacom Academy, with the certificate is provided by the Government of India. धन्यवाद इंस्टीट्यूट के
करता करता हमारे प्रयास तिवारी जी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक इंटरेस्ट होने की वजह से आज शिक्षा के क्षेत्र में धन्यवाद आपको। बहुत छोटे हैं आप लोग, बड़ी लंबी कैरियर आप लोग का है, बड़ी समस्याएं होती है। 2-3 बिंदुओं पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि अधिवक्ता हूँ तो पॉइंट वाइज ही बात करना अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है स्किल। तो आप सभी इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि डिग्री उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपकी ज़िंदगी में आपकी स्किल इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा उदाहरण, तो हर चीज़ को उदाहरण से समझाया जाता है पढ़ाई में। बड़े बड़े चीज़ों को छोड़ के कभी कभी हम लोग अपनी गाड़ी, अपनी बाइक बाहर से भी सर्विस कराते हैं, क्योंकि बाहर का मैकेनिक कभी कभी हम लोग को अच्छी सर्विस देता है। इसकी जरूर डेवलप कीजिएगा किसी भी क्षेत्र में, वो बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन की ये डिग्री है, ये कागज है। दूसरी पॉइंट पे हम आते हैं जो एजुकेशन क्षेत्र में बहुत ही आप लोग के करियर के लिए जरूरी है, धैर्य। घबरा जाते हैं हम लोग, हमारे साथ वाले कहाँ से कहाँ चले गए, हम अभी कुछ नहीं करता। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जिंदगी एक खेल है, बस इसको इसी तरह से जीना है। हम लोग का एक रोल दिया गया है कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है। अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है कि खरगोश के चाल से कछुए की चाल जरूर कहीं ना कहीं आपको पहुंचा देगी। तीसरी चीज है, लास्ट मेरा जो पॉइंट था, मैं जिस बिंदु पे आप लोगों से बात करना चाहता था, 2 तरह की चीजें होती है हम लोग डेवलप करते हैं। एक है शारीरिक फिटनेस, एक मानसिक फिटनेस। हम सभी लोग अपने शारीरिक फिटनेस पे जरूर ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है, हम लोगों ने मानसिक फिटनेस पे बहुत ही कम ध्यान दिया। अगर मानसिक फिटनेस नहीं जरूरी होती तो सुशांत सिंह जैसा फिटेस्ट आदमी कभी सुसाइड नहीं करता, और मुकेश अंबानी जैसा मोटा थुथरा आदमी आज दुनिया का नंबर 1 आदमी नहीं होता। तो मानसिक फिटनेस पे जरूर ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ न कुछ समय निकालिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे योगा हो, ध्यान हो, क्योंकि सब चीज, एक बड़ी अच्छी एक कहावत थी, कहीं मैं सुना था कि सबसे बड़ी ताकतवर कुछ होती है तो वो आपका माइंड होता है। वो हॉकिंस थे, हॉकिंस नाम था उनका, जो पूरी तरह से चल नहीं पाते थे, पूरी तरह से पैरालिसिस थे। उनकी शारीरिक फिटनेस कुछ नहीं थी, लेकिन मानसिक फिटनेस पे वो कहाँ से कहाँ। हमें ये नहीं सिखाया जाता, हम जिस माहौल से आते हैं उसको हमको ये सिखाया जाता है बेटा स्वस्थ करो, मस्त करो, लेकिन मानसिक फिटनेस पे सिखाना बहुत ही कम सिखाया जाता है। तो आप लोग जरूर मानसिक फिटनेस पे वर्क किया कीजिए, आप लोग को बहुत ही आगे बढ़ने में सहायता देगा। देख लीजिए बहुत से उदाहरण है हमारे सामने, चाहे वो स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण हो, चाहे वो मुकेश अंबानी का उदाहरण हो, जो फिट नहीं है, शारीरिक रूप से फिट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ऐसी जगह स्थापित कर दिया जहां पहुंचने का वो सपना देखते हैं। तो मानसिक फिटनेस बहुत जरूरी है। शारीरिक फिटनेस एक अच्छी चीज है, लेकिन आपके बढ़ने में जो धैर्य है, जो स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक फिटनेस ही दे सकता है, जो हमें समाज नहीं सिखाता। समाज यही सिखाता है कि आप फिट रहो, ये रहो, तो चीजें इससे हटके भी आगे बढ़ती है। जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज में जाते हैं तो किताबें किनारे हो जाती है, किताबें फिर होती है वहां पे, फिर नहीं होता है कि किताब में क्या है, कैसे 1+1 2 फिर वहां नहीं होता। तो चीजें सीखनी है, प्रैक्टिकल है, ध्यान रखिए। बाकी हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़िए। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है ये पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिलिए घर सुना सुना है। थैंक यू सो मच। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी
कोई समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Nidhi Uttam and Priyanka. Respected sir and honorable chief guest sir, we are very thankful to AD sir who has given us chance to sing our national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shyamalam Mataram, Vande Mataram, Shudrajyotsnam Pulakitayaminim, Fullakushumita Drumadal Shobhinim, Shuhashinim Sumadhur Bhashinim, Sukhdam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. थैंक यू शुक्र। इस कार्यक्रम के अतिथि महोदय श्री दुर्गेश पांडे जी, हमारे सहयोगी श्री सुमित जेटली जी, श्री संदीप कुमार जी, श्री दीपक शर्मा जी एवं यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चों, आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का यह कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहूँगा श्री पांडे जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से, और आज जैसा कि आपने बताया कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो कचहरी में थे और वहाँ से मेरे निवेदन पर आप बिल्कुल समय से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो हम आभारी हैं आपके तहे दिल से। आपने जिस चीज़ का जिक्र किया और वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, वह चीज़ है आपके अंदर जगी हुई स्किल यानी कौशल। कभी कभी मैं अपने क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि स्किल का मतलब कुछ यूँ है कि जैसे आपने कोई एक बुक पढ़ी और वो बुक स्विमिंग की है, 100 नंबर का पेपर है, आपने 100 नंबर में 90 नंबर, 95 नंबर, 98 पा लिए और आप प्रथम श्रेणी से या कहें डिस्टिंक्शन से उत्तीर्ण हो गए। अचानक किसी दिन किसी बाढ़ में या किसी भी ज़रूरत के तक, और आपने कभी स्विमिंग की नहीं है, यानी प्रैक्टिकल, यानी आपके पास स्किल नहीं है, और वहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि सबको कहा जाए कि भाई आपके कितने नंबर आए, कोई बोलेगा 40 मार्क्स, कोई बोलेगा 60 मार्क्स और आपके आए 98 मार्क्स, तो लोग यानी सोसाइटी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगी कि सबसे पहले आप कूदें नदी में और बचने का प्रयास करें और बाकी लोगों को बचाएं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपकी वो पढ़ाई किसी काम की नहीं रहेगी। कोठारी आयोग की जो सिफारिश थी 1966 में, जिसमें शिक्षा पर बल दिया गया था, पहला ऐसा आयोग था जिसने व्यापक शिक्षा के लिए कहा कि न केवल विद्यार्थियों की साक्षरता पर बढ़ाई जाए, बल्कि उनके अंदर सामाजिक कार्य कौशल, मतलब समाज में कार्य करने की कुशलता और जो ज्ञान है उनका वो, और साथ में कुशलता, दोनों को मिला करके इस तरह की शिक्षा दी जाए। और आगे चल करके फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ना, और अभी हाल ही में भी वर्तमान सरकार के द्वारा भी एक शिक्षा पॉलिसी जो डिसाइड की गई है, उसमें बताया गया है कि बिल्कुल क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ जब स्टूडेंट्स आते हैं तो सभी तो मैं नहीं कहूँगा, बट ज़्यादातर स्टूडेंट से जब कहा जाता है कि आप इंग्लिश कितने साल से पढ़ रहे हो, तो बताते हैं 10 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग दे आर स्टक, दे फील हेजिटेटेड। यहाँ पे हम लोग इसी बात की कोशिश करते हैं कि पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी बात को रखने आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग न्यू मीडिया कॉम अकेडमी में इसी बात की कोशिश करते हैं कि आप जो कुछ पढ़ के आए हैं
वो उसको कंप्यूटर एजुकेशन अपने आप में एक स्किल का सबसे बड़ा उदाहरण है, और जिसके बिना आज के ज़माने में किसी को भी बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, क्योंकि एक होता है लिटरेट होना और आज की डेट में एक है कंप्यूटर लिटरेट होना। तो हम लोग उसी का प्रयास यहाँ पर करते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर उसका बेनिफिट उठाते हैं और आगे आप कहीं न कहीं एम्प्लॉयड भी होते हैं, इसका भी प्रयास ये संस्था करती है। मैं नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में भी रहा हूँ और वहाँ पर हमने जिस चीज़ पे फोकस किया है वही है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना आना। आपके अंदर नॉलेज कितनी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाते हो, उसको स्किल में बदल पाते हो, उसके जरिए कोई बेनिफिट आउटकम ले पाते हो कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में कहते हैं प्रोडक्टिविटी। सुबह से लेकर शाम तक हमने काम किया बट रिजल्ट अगर कुछ नहीं आया, यानी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, तो फिर वो काम मायने नहीं रखेगा। कंसिस्टेंसी, आपको बहुत कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क, ये किसी भी मुकाम तक ले जा सकती है। आप सभी बहुत रुचि से, बहुत ही शिद्दत से यहाँ पे भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जीके कंपटीशन भी कराया गया जिसमें आप सभी ने भाग लिया और 6 प्राइजेज रखे गए थे, जिसमें से 4 यहाँ के स्टूडेंट्स ने, 2 बाहरी स्टूडेंट्स ने भी। तो हम तो सबको प्रमोट करते हैं कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपना योगदान दें। जीके बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो आपके सामान्य ज्ञान की परख तो की ही जाती है। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने पार्टिसिपेट किया और भी समय समय पर खेल प्रतियोगिताएँ और भी चीज़ें होती रहती हैं और कुछ भी कार्यक्रम होता है तो आप लोग इसी तरह से सम्मिलित होते हैं, बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं पुनः एक बार अमित महोदय का धन्यवाद दूंगा कि वो हमें इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर और हमें उन्होंने गौरवान्वित किया। मैं आगे